Welcome back student, I am Santosh Misra and today we are going to discuss the question on interstate transaction in GST. So look at the projector. Illustration 6. Past journal entries in the books of Mr. Gopal assuming CGST 6% and SGST at the rate of 6%. Gopal purchased goods from 1,50,000 from outside the state and made payment by check. This is the cash transaction. Then purchase account debit, input IGST account debit to bank account, purchases for 1,50,000 only, and Gopal purchased good from outside the state. This is the interstate transaction. That's why CGST and SGST will not imposed on this transaction. IGST will attract this type of transaction. So purchase account debit, IGST, the rate of IGST is 12%. Rate of IGST is 12%. Then 1,50,000 into 12% is equal to 18,000 and total is 1,68,000 being goods purchased from outside the state. Second transaction is input IGST is the asset for the business. Input IGST is asset for the business and he sold goods for 1 lakh outside the state on credit. Sales is interstate and it is credit transaction. That's why debtor will be debited and to sales account. This transaction is interstate transaction. Then IGST will imposed on this transaction. Then to output IGST. Output IGST is liability for the seller. Okay. Then that's why we are crediting output IGST account 12,000. Okay. In next slide, so in next transaction he sold good for 1,80,000 locally on credit. So this is the credit transaction and it is intra-state transaction. That's why CGST and SGST will levy. So look at the solution in next slide. Solution is output this is sold goods for 1,80,000 on locally on credit. Then debtor account debit to sales and output CGST and output SGST will be credited because this is intra-state transaction. ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है इसलिए आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगा. ठीक, अब किस अमाउंट पे लगेगा? 1,80,000 का था आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी का रेट 6% से दिया हुआ था. 1,80,000 इंटू 6% इज इक्वल टू 10,800. इन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड टेलीफोन बिल फॉर 5,000 बाय चेक. देन दिस इज ए एक्सपेंस and input CGST and input SGST is imposed on this transaction. Then telephone expenses account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to bank because we paid the telephone bill by check. Then 5,000 into 6% is equal to 300 and 300 total is 5,600,000 and in fifth transaction he purchased an air condition for his office for 25,000. This is the purchase of asset
एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। यदि कुछ नहीं बोल रहा है कि ये एयर कंडीशन हमने कहां से परचेस किया है, तो हम इसको किसका मानेंगे? दिस इज इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। देन ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक 28,000। अब जितने भी इनपुट IGST है पेमेंट, अब देखिए लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है? पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, बाकी बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ GST देना है। तो अब हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जितना आपका इनपुट CGST है, जितना आपका इनपुट CGST है, जितना इनपुट SGST है, इन और जितना इनपुट IGST है, इन सबको हम लोग टोटलिंग करेंगे। और टोटलिंग करने के बाद अब देखिए ये आ गया वर्किंग नोट्स। सो द वर्किंग नोट सर, इनपुट IGST इज 18%। IGST आपका कितना वो हुआ? 18,000 लगा है, और आउटपुट IGST है आपका 12,000। इनपुट CGST 300 और 1500 ये आ गया 1800, और आउटपुट CGST आपका आ गया 10,800। अब देखिए इनपुट SGST है 1800 और आउटपुट SGST है 10,800। मतलब इतना हमको पे करना है, और इतना हमने ऑलरेडी पे कर दिया है। इतना हमने क्या कर दिया है? ऑलरेडी पे कर दिया है। अब देखिए सबसे पहले सेटअप प्रोसीजर हमने आप लोगों को वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द सेटअप प्रोसीजर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? इनपुट IGST इज मोर देन द आउटपुट IGST। इनपुट IGST क्या है? ज्यादा है आउटपुट IGST से। तो बैलेंस आपका कितना बच जाएगा? 6,000 का इनपुट IGST का आपका बैलेंस बच जाएगा। अब इससे हम लोग क्या करेंगे? इससे हम लोग इसको सेटअप करवाएंगे, टोटल आउटपुट CGST से हम लोग इसको सेटअप करवाएंगे। उसके बाद आपका ये 6,000 जब सेटअप हो जाएगा तो 4,800 बचा रहेगा। ये 4,800 क्या बचा है? आपका आउटपुट CGST, जिसको कि अभी हमको पे करना था। अच्छा, अब हम इसको इनपुट CGST से एडजस्ट करवाएंगे। देखिए आपका अभी इतना क्या बचा हुआ है? आउटपुट CGST बचा हुआ है 10,800 का था ये आउटपुट CGST। इसमें से हमारा जो बैलेंस अभी भी इनपुट बच गया था IGST का, उससे हमने पहले इसको एडजस्ट करवा दिया। अब इतना हमको और पे करना है, 4,800 हमको पे करना है अभी बैलेंस। तो हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास इनपुट CGST का कितना बैलेंस है, तो 1800। हमको पे कितना करना है? 4,800। तो इसको हम सेटअप करवा देंगे, तब कितना बच जाएगा? 3,000। अब यही 3,000 जो है आपका क्या होगा? पे किया जाएगा। अच्छा, आउटपुट SGST में कितना है? आउटपुट SGST आपको 10,800 पे करना है, और ऑलरेडी आपका क्रेडिट कितना बचा हुआ है? 1800। तो इसको हमने यहां से सेटअप करवा दिया। 9,000 का आउटपुट SGST हमको पे करना रहेगा। तो कहने का मतलब है सबसे पहले आउटपुट IGST को इनपुट IGST से सेटअप कराएंगे। उसके बाद यदि कुछ बैलेंस बच जाता है तो इन आउटपुट CGST को हम लोग क्या करेंगे? उससे सेटअप करेंगे। अब यदि अभी भी अब सारा यदि बैलेंस खत्म हो गया तब तो बहुत सही बात है, आउटपुट इनपुट IGST का सारा बैलेंस कंप्लीट हो गया। अब देखना है क्या आउटपुट CGST अभी भी आपका बाकी है क्या? तो हाँ सर, अभी भी मेरा बाकी था आउटपुट CGST। बैलेंस डिडक्ट कराने के बाद हमको 4,800 पे करना था। तो हम इनपुट CGST से इसको सेटअप करवाएंगे, और जो बैलेंस बच जाएगा, अभी भी यदि बैलेंस बच गया तो इसको बैंक से पे कर देंगे। उसी तरीके से जो आउटपुट SGST है उसको हम इनपुट SGST से सेटअप करवा देंगे, और जो यदि बैलेंस बच गया तो इसको हम लोग बैंक से पे कर देंगे। इसकी एंट्री क्या होगी? आप लोग देखिए इसकी एंट्री क्या होगी। आप इसकी एंट्री देखिए,
ये इसकी एंट्री आप देखिए सर, प्लीज जूम इन दिस 3 एंट्रीज. फर्स्ट स्टेप इज आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 12,000 टू इनपुट IGST. पहले मेरा आउटपुट IGST जितना था 12,000 का, हमने उसको सेटअप करवा दिया क्योंकि हमारे पास इनपुट IGST 18,000 का था. 12,000 हम आराम से पे कर देंगे. हाँ सर, पे कर दिया. फिर आउटपुट CGST लिया, वो हमको 10,800 पे करना है. ये लायबिलिटी क्रेडिट में आउटपुट CGST था. अब जब हम उसको पे कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, डेबिट में हो गया 10,800. अब हम इसमें से इनपुट IGST का भी 18,000 मेरे पास इनपुट पड़ा हुआ है. देखिए इनपुट 18,000 का था, 12,000 हमने सेटअप करवा दिया तो 6,000 यहां हमने पे किया. फिर 1800 का इनपुट CGST, आउटपुट CGST को कौन एडजस्ट करेगा, पहले तो IGST से सेटअप करवाएंगे, उसके बाद यदि पूरा नहीं सेटअप होगा तो CGST से सेटअप करवाएंगे, इनपुट CGST से, और वो है 1800. बैलेंस अमाउंट हमने पे कर दिया टू बैंक अकाउंट 3,000. उसी तरीके से आउटपुट SGST को इनपुट SGST से सेटअप करवा देंगे 1800, और उसके बाद जो बैलेंस बच गया उसको हम बैंक से पे कर देंगे. ये आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का सेटअप प्रोसीजर था. होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट, एंड आई एम सेइंग अगेन दैट प्लीज ट्राई टू सॉल्व सो मेनी इलस्ट्रेशन, सो मेनी क्वेश्चंस, एंड practice makes man perfect. Then you have to do practice. Okay, thank you student, thank you so much.